Hello guys, welcome back to King Lion Gaming. So guys, today we are going to make police station because we found an item. It is so mysterious and some villagers try to escape. So that's why we are trying to make a police station. In the streets of part continue. What is this? Oh, my net's on. सभी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि टेस्ट को दोबारा रिकॉल किया जाए, मगर टीचर कहता है कि अगर इसने सॉल्व कर लिया तो आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। मैं दोबारा टेस्ट नहीं लूंगा। इसके बाद हमें जेन और इसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आपस में डिस्कस कर रहे थे मैथ्स टीचर के And it's continuous because my X recorders this I'm moving this thing is or going missing, so that's why let's begin guys. Let's begin. So guys, this is our meeting and item finding room. We got this investigate this axe, this both emerald and this pillager iPad. What does it called? I don't know. So that's why. So I'm going to call my brother. He is also in this. Brother, Nathan. We are going to build what is police station. Yeah. So this is your correct. This is my carrot. Oh, I am not hungry right now. I'm going right. My brother is not joining the world because his phone has something. He can't join the server. My phone got so switched off. I was playing with the game of what that park, but that my phone mobile. You download Death Park? Yes, but I deleted. Why? Because I already downloaded one game. That game is called the Racer Gaming. Race Master? No, Racer Gaming. Brother, you tell where to build. Go straight. Here, because we are building a police station, we have to be hidden. Yes? Yeah. What llama? You tell your world have to know llama. I have llama. I don't allow llama. So guys, I was mysterious. When we show that even I opened this case and cave on my old world, and we are so creative. We taking a thing on this elytra, and we scrolled here a thing. We got horn. Yeah. That raid will come and pillager. That sound. You can show him, but you are not in KSN, please. You show. You show. I am not in creative. Please show. How? Go to creative. Oh my god. First time I'm going to creative. But not taking things. Yeah, you're right. That's a mysterious. Here is that. Where is that?
Oh, I need to go to cave. Thank you. Well, that don't work. Then you go to my world, okay? हो गई है तभी चीन कहती है कि कैनवास को हैक कर लिया जाएगा वो उन सबको बताती है कि मुझे कैनवास को हैक करना आता है अब नेक्स्ट फ्राइडे में सभी स्कूल पहुंच जाते हैं Then go to look. अच्छी खासी Go to my world. Wait, why don't caves and cubes not coming? You have to firstly you have to put the caves and cliffs. ऑफ कर देती है इसके बाद ये होगी Remember the phone is not working. That you cannot put the respawn. Join my world. किसी को नहीं No, Nathan. Okay. And बात का गिल्ट रहेगा अब सभी लोग मिलकर स्कूल में एंजॉय कर ही रहे थे तभी इनका एक फ्रेंच फ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसको वॉमिट होती है तभी हमें वॉशरूम में मैस्कॉट पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने के हाथ में हैमर पकड़ा हुआ था इस आदमी ने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो उस दिन ब्रूडी ने पहना हुआ था और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ब्रूडी और इस फ्रेंच बॉय की लड़ाई हुई थी उस दिन मैच वाले दिन और वे सभी वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं तभी चीन की वो फ्रेंड जिनकी ब्लॉन्ड हेयर है ये लड़की उस फ्रेंच बॉय को पसंद करती है अब जब वो वॉशरूम आती है तो वो देखती है उस फ्रेंच बॉय की डेथ हो चुकी थी किसी ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था तभी सभी वॉशरूम आ जाते हैं और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो उसके बाद एलिस भी वॉशरूम जाता है और सबको बताता है कि फ्रेंच बॉय का मर्डर हो चुका है ये सभी बहुत ज्यादा Oh my डरते थे। God. एलिस कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए wait, I'm in creative, so my cheats, yeah, my cheats will be on. इसको कहता है कि जिसने भी इसको मारा है वो अभी यहीं पर होगा और वो हमें भी मार सकता है हमारा यहाँ से Oh चले my जाने God, से I need to पहले off this. इसके साथ First time I'm doing everything in creative. उसको किसी तरह मनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अब ये ब्लॉन्ड हेयर गर्ल सबको 6 बताती है कि minutes. मैंने ब्रूडी को यहाँ पर देखा था और उसने वही मैस्कॉट पहना हुआ था और उसी ने फ्रेंच को मारा है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं ब्रूडी को मार दूंगी और वो साथ ही ब्रूडी तोड़ने की कोशिश भी कर रही थी अभी चीज उसको बताती है कि ये विंडो नहीं टूटेगी क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है ये सभी लोग पूरी तरह से स्कूल में फंस चुके थे क्योंकि सभी डोर्स भी बंद हो गए थे और विंडोज भी Oh, he jumps so high, I need to kill him. कि अब ये सब लोग यहाँ से बाहर I love killing in Minecraft. So guys, I'm back. कि वो उससे जल्दी है वो चीन को बार बार धक्का दे रही थी और उसको कहती है कि तुम भी जा रही हो यहाँ पर चीन को गुस्सा आ जाता है ये उसको धक्का देती है जिसके बाद इसकी फ्रेंड नीचे गिर जाती है उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद चीन उसी रूम में जाती है जहाँ पर मैथ्स टीचर इनकी क्लास लेते थे जैसे ही वो उस रूम में जाती है वहाँ पर उसको मैथ्स टीचर नजर आते हैं जो कि बहुत ही अच्छे मूड में थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और वो चीन से कह रही होती है मैं ऐसा करना कुछ भी नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करता और मैं तुम्हें सिखाता लेकिन आज तुमने अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया ये धक्का तो तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था मैं चाहता था कि तुम इन लोगों से दूर रहो और अपने आप को पहचानो कि तुम कितने टैलेंटेड हो मैं हमेशा से तुम्हें कहता आया हूँ कि तुम टैलेंटेड हो इन लोगों से What happened to me? लगता है कि आज तुमने I got ये पकड़ी है। paused by 24 seconds. What? Yeah. What? I got paused in 24 seconds. Paused? कहते हैं कि उस दिन तुमसे ये पेंसिल Really? थी, ये वही पेंसिल So guys, I want to tell something. I'm in a caves and cliffs, and I will go to creative. So guys, I will go and creative, and I will show this sword, and I will scroll and show you what's that, and I will call my brother also. We that's a miss. पीछे से टीचर आ जाते हैं और उसको मारने But how did you get that? से बचकर भाग जाती है और जंगल में पहुंचकर एक ट्रक पर चढ़कर बैठ जाती है और तभी जब ये टीचर उसको ढूंढने जंगल I think that villagers. What is that? What is that? What? That's a beacon. Oh, I remember. I can see. What? I came from there, right? No. No. Yes. But how did they? Go there. Go. No. I'm scared. Hero friend's house. You already know when it we in 3 o'clock. Everything goes very bad. स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हम घर में पहुंचकर एक ट्रक पर चढ़कर बैठ जाती है और तभी जब ये टीचर उसको ढूंढने जंगल में जाते हैं
शीशा टूट जाती है और ये नीचे उसी टीचर के पास गिर जाती है। इस तरह पेंसिल उस टीचर के How do you know those Hindi movies? मारती है। Oh, you put the captions? मर्डर कर देती है। लास्ट सीन में हमें ब्रूडी को दिखाया जाता है और अपनी कार का शीशा नीचे करता है और देखता है। तभी वहाँ पर हमें दो और आदमी भी दिखाए जाते हैं जो देखते हैं कि जेनेट हैमर पकड़े हुए जंगल से आ रही है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वो कहती है कि बैंक ने तो इस जगह को ले लिया था, उसके बावजूद आप यहाँ पर कैसे रह रही थी। वो बूढ़ी लेडी उनको बताती है कि उसने बैंक में सारे पैसे दे दिए थे, इसके बाद ये जगह उसी की थी। लेकिन दांते को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है कि झंडा उसके ग्रैंडफादर का था और ये उनकी आखिरी निशानी है। तभी सीढ़ियों में एक बड़ा सा आदमी आता है जिसे मेलोडी देखकर डर जाती है। वो बूढ़ी लेडी उस आदमी को कहती है कि वो फिक्र ना करे, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है कि ये इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है और वो अब तक उसका ख्याल रख रही है। तभी वहाँ पर दांते ने ऑफिसर्स को कॉल कर कर बुला लिया था। वो ऑफिसर्स आते हैं और उस बूढ़ी लेडी को वहाँ से जाने का कहते हैं। ये सुनकर उस बूढ़ी लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी मदर को उठा लेता है। ऑफिसर्स उनको कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दांते की फ्रेंड भी उन ऑफिसर्स के साथ जाती है ताकि वो उस बूढ़ी लेडी की हेल्प कर सके। अब जब ऑफिसर्स अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो वो बड़ा सा आदमी मेलोडी को घूरता है क्योंकि उसको मेलोडी पर गुस्सा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उस झंडे को उतार कर नीचे फेंक देता है जिससे उस आदमी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये लोग इन्वेस्टर्स को ये जगह दिखाना शुरू कर Oh my देते हैं। God. दूसरी तरफ रास्ते में जब उस बूढ़ी लेडी को हॉस्पिटल Why do we always rain in here? मर जाती है। वो बड़ा सा आदमी उसको देखकर रोने लगता है क्योंकि वो उसको अपनी मदर समझता था। वो अपनी मदर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। इस बात से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जब ऑफिसर उसको शूट करने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ मोड़ देता है जिससे वो गोली आगे वाले ऑफिसर को लग जाती है जो ड्राइव कर रहा था। इसी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोडी ऑप्शन कर रही होती है और सभी वहाँ पर जगह खरीद रहे थे। और जब मेलोडी अपने फोन को चेक करती है तो वहाँ पर उसको दांते की फ्रेंड का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसको बताती है कि वो बूढ़ी लेडी मर चुकी है। मेलोडी अभी बात दांते को भी बता देती है क्योंकि उन दोनों की वजह से वो बूढ़ी औरत मर गई थी। मेलोडी अपनी बहन के पास जाकर अपनी बहन से कहती है कि हम दोनों I think it's gonna be night. हमारे ऊपर कोई भी केस ना बने। लूना ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। इधर गैस स्टेशन वाला वही आदमी की सभी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ जब गाड़ी में दांते की फ्रेंड को होश आता है तो वो देखती है कि दोनों ऑफिसर्स मर चुके हैं। वो आदमी अपनी मदर को लेकर कहीं चला गया था। तभी वो साइड मिरर से उस आदमी को देखती है जो अपनी मदर के फेस की स्किन को उतार रहा था। दांते की फ्रेंड अब रेडियो के जरिए किसी से हेल्प लेने की कोशिश करती है। उस बड़े से आदमी ने भी अब अपनी मदर की चेहरे की स्किन को उतार लिया था और वो अपनी मदर के चेहरे को अपने फेस पर लगा लेता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो बड़ा सा आदमी वही लेदर फेस था। जब दांते की फ्रेंड ये सब कुछ देख लेती है तो वो रेडियो पर वो सभी बातें बता देती है और वो गैस स्टेशन का ऑनर ये सभी बातें सुन रहा था जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। दांते की फ्रेंड देखती है कि ऑफिसर अभी भी जिंदा है। वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है। वो फिर भी होश होने का नाटक करती है। दांते की फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लेदर फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसका गला पकड़कर उसका पेट काट देता है जिसके बाद वो लड़की भी मर जाती है। इसके बाद लेदर फेस दोबारा से टाउन की तरफ बढ़ता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए। यहाँ पर टाउन में मेलोडी जब अपनी बहन के साथ जाने वाली थी तभी वहाँ पर वो गैस स्टेशन वाला आदमी सभी कार्स के केस Oh my God, this police station is so small. No, I'm going to see here to sleep. That police station is. I didn't complete. I was completing the outline. That police station is will be so small because police station I already know a police station. It's very small. Like I think GTA 5. In GTA 5, it's small. दूसरी तरफ वो गैस स्टेशन का ऑनर शेरी को कॉल करता है। वो उसको बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है।
came here. देखती है जिनको लेदरफेस ने मार दिया था। उधर दूसरी तरफ हम डांटे और मेलोडी उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर मेलोडी को उस बूढ़ी औरत की एक तिजोरी मिलती है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। वो पेपर्स देखकर मेलोडी को भी बात पता चल जाती है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी, ये प्रॉपर्टी उसी की थी। I saw a pillager. सुनाई देती है। डांटे उस आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाता है, जहाँ पर वो अपने पीछे लेदरफेस को देखता है। वो उसको देखकर You know milk? You have milk? No. गला काट देता है। I'm going to take it. काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। मेलोडी जब नीचे आकर देखती है तो Oh my god. How many minutes? 50 minutes I'm playing. उसकी कब्र पे So guys, I found another mystery. जाता है। वो अपनी मदर के कटे हुए चेहरे पर मेकअप लगाता है। उनकी याद में लेदरफेस विंडो से बाहर जो बहुत ज्यादा Wait. देखता है तो उसको बहुत ज्यादा I know something. I know if I stream. If I stream must have a trick. It is when you put lava bucket on the villager. Then you will never got. But I don't have lava bucket. उसी दीवार को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ So I think I need to go to जोर से उसकी आंखें another. खुलती हैं और वो But जल्दी where? से घर के बाहर जाता है। उसको वही गैस स्टेशन वाला आदमी देख I लेता है। remember I kept here somewhere. को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दांते से पूछता है कि ये सब Hey, there is my milk. Nathan, उसको कुछ बताता what? I got milk. है। अब वो आदमी जल्दी से गन लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और अपने साथ लड़की को कहता है कि वो I'm fearing work because of the what you know. And he is near of my old house castle. को जमीन पर रखकर स्टार्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है। वो लेदरफेस से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी लेदरफेस उसके पाँव पर हैमर मारता है जिससे उसका पाँव टूट जाता है। इसके बाद लेदरफेस उसको विंडो में देकर मारता है जिससे उसके फेस से ब्लड Nathan, I'm shooting my gun. जाता है। तभी वो मेलोडी को बेड के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो अपनी Where's जेब that? से कीज को निकाल देता है ताकि मेलोडी यहाँ से भाग सके। तभी लेदरफेस उसके सर पर You killed. देता है जिसके बाद Take a milk. सीढ़ी कट हो जाती है। दूसरी तरफ Oh my god! तो रास्ते में उसको वही गाड़ी पसंद आती I है। didn't ask him. I asked him, forgot to ask him. लेदरफेस की मदर की Here is my second clue. Nathan, I got the clue. कि ये लेदरफेस का ही काम है। वो उसको मारने के लिए उस टाउन की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ सभी लोग बस What did you tell? जब लीला We got another clue, right? What's that? Emerald. And banner. We got 3 clues. No, 2 clues. huh? Two Yes. clues. Yes. देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेलोडी कीज को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन लेदरफेस उसको भागते हुए देख लेता है। वो अपना हैमर उसको देकर मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपने चेनसॉ को स्टार्ट करता है और मेलोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेलोडी अब अंडरग्राउंड से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अपने चेनसॉ को जमीन के अंदर मारता है ताकि वो मेलोडी को मार सके। अब ये देखकर मेलोडी नीचे ही छुप जाती है और लेदरफेस उसको ढूंढने लगता है। तभी मेलोडी अपनी बहन की आवाज सुनती है जो उसको बुला रही थी। वो अपनी बहन की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगती है जिसे लेदरफेस सुन लेता है और वो अपनी चेनसॉ को जमीन में चला देता है, लेकिन मेलोडी की बहन उसको बचा लेती है। वो विंडो को तोड़ती है और मेलोडी को वहाँ से निकाल लेती है और वो दोनों जल्दी से बस के अंदर आ जाती है। I remember it was here. और कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ता है Ah, I got it. लेदरफेस को देखता है। उस बस ड्राइवर को ऐसा लगता है कि शायद कोई छूट गया है। वो उसको देखने के लिए बस से बाहर जाता है, लेकिन तभी लेदरफेस उसका कटा हुआ सर उसके अंदर फेंकता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आकर लेदरफेस अपना चेनसॉ को स्टार्ट करता है और सभी को मारने लगता है। एक आदमी वहाँ पर लाइव वीडियो बना रहा था। अब ये सभी लोग लाइव देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेलोडी और लैला अब पीछे बस में जाकर छुप जाते हैं। लेदरफेस बस में सभी लोगों को अपने चेनसॉ से मार देता है। इसके बाद उसको बस के पिछले हिस्से से आवाज आती है। लैला किसी तरह बस के ऊपर चली जाती है, लेकिन मेलोडी बस के अंदर ही रह गई थी। अब मेलोडी की बहन उसको ऊपर खींच लेती है। वो दोनों बच जाते हैं और वो दोनों भागने लगती हैं। तभी सैली वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाती है। मेलोडी सैली को बताती है कि ये कोई साइको किलर है जिसने I got a clue, but I didn't cap. I will cap. I will cap. After finishing this. और वो 50 साल से इसका इंतजार
बाहर नहीं छोड़ देती है और गन लेकर लेदरफेस के घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो शॉटगन को लेदरफेस के सामने कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो कहती है कि तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। So guys, my oral exam got लेदरफेस finished. बात का जवाब नहीं देता। ये सब बातें सुनकर लेदरफेस अपने चेनसॉ को उठा लेता है और उन दोनों लड़कियों को मारने So के that's लिए why चला my जाता है। video वो will जाकर get उन लोगों को uploaded. अटैक कर देता है और उनको मारने वाला होता है। तभी सेलिन उसको I शूट think कर I need देती to है, go. लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। सेलिन उसको बताती है कि वो वही लड़की है जो तुमसे बचकर निकल गई थी। ये सुनकर लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। सेलिन उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की कीज देती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से चली जाएं। My सेलिन news जब video. लेदरफेस के चेनसॉ की आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ जाती है। लेदरफेस अचानक से आकर सेली पर अटैक कर देता है। सेली अपनी शॉटगन जब लेदरफेस पर चलाने लगती है तो वो जाम हो जाती है। एक नाइफ निकालकर उसको स्टैब करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो अपने चेनसॉ से सेली के 2 टुकड़े कर देता है। अब मेलोडी और उसकी बहन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस अपने चेनसॉ को उनकी कार पर देकर मारता है, जिससे मेलोडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन को कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। अब लैला वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है। मेलोडी उसको कहती है कि जो हमने तुम्हारी मदर के साथ किया, Nathan, so you are here. माफ कर दो। Nathan, लेदरफेस अपने चेनसॉ को स्टार्ट we कर need to देता है। get this banner. लैला भी आ जाती है उस Let पुलिस स्टेशन me, वाले let आदमी me, की let शॉटगन me लेकर, लेकिन लैला उसको शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसको गन चलाना नहीं आती थी। वो अब लैला का पीछा करता है, लेकिन तभी सेली पीछे से लेदरफेस को शूट कर देती है, जो कि अभी जिंदा थी। इससे लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। इससे लैला की जान बच जाती है। लैला जब सेली के पास जाती है तो वो उसको कहती है कि अगर वो ऐसे ही भागती रही तो लेदरफेस उसका पीछा करता रहेगा। वो उसको शॉटगन देती है और कहती है कि तुम्हें इसका काम खत्म करना होगा। अब वो सेली की बात सुनकर शॉटगन को लेकर लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है। तभी लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसको लेकर पानी में कूद जाता है। उसके बाद पानी में से लैला बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, पर तभी लेदरफेस भी पानी से निकल आता है और वो चेनसॉ को स्टार्ट कर उसके पाँव पर मारने लगता है। जब वो लैला को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर मेलोडी आ जाती है। वो लेदरफेस को रोकती है, लेकिन वो मेलोडी को पीछे गिरा देता है। जब लैला लेदरफेस को शूट करने की कोशिश करती है Now I need to walk till there. और उसके बाद मेलोडी लेदरफेस के I had Enderman. और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उन दोनों को ये लगता था कि वो मर चुका है। अगली सुबह वो दोनों बहनें गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। वो गाड़ी को ऑटो पायलट पर सेट कर देती हैं और बातें करती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लेदरफेस आ जाता है। वो मेलोडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसके फेस को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे मेलोडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। लैला अपनी बहन की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है। लेदरफेस उसकी बहन का कटा हुआ सर उसको दिखाकर अपना चेनसॉ घुमाता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस दोबारा से अपने पुराने घर में रहने के लिए जा रहा है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। I think. Ah, here you इस मूवी के साथ में हम go. So small. जाते हैं जो Yes, I told you ना. और इनमें से एक हॉबिट के कांटे में मछली फंस जाती है। ये मछली बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये मछली को खींच नहीं पाता, इसलिए वो खुद तालाब में मछली के पीछे गिर जाता है। अब मछली उसको अपने साथ साथ खींचना शुरू करती है। जब वो तालाब में गिर जाता है तभी उसकी नजर वहाँ पर एक रिंग पर पड़ती है जो कई सौ साल पहले तालाब में गिर गई थी, और ये वही रिंग है जो आज फ्रोडो के पास है। अब वो हॉबिट रिंग को उठा लेता है और खुद तालाब से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा हॉबिट भी आ जाता है जिसका नाम स्मीगल था, जो आज फ्रोडो के साथ है और गोलम के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को देखकर उस रिंग का नशा हो जाता है और दोनों उस रिंग को लेना चाहते थे। स्मीगल उससे कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो, लेकिन वही रिंग स्मीगल को देना नहीं चाहता था। अब इन दोनों के दरमियान में काफी ज्यादा फाइट होती है और स्मीगल उस दूसरे हॉबिट को मार देता है। इसके बाद वहाँ के लोग स्मीगल को निकाल देते हैं और वो दूर कहीं गुफा में चला जाता है। अब स्मीगल ने गुफा में रहना शुरू कर दिया था और वहाँ पर रहकर वो कच्ची मछलियाँ भी खाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और 2500 साल बाद स्मीगल बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि So guys, I have finished finally. अपने बेटे बोरोमीर की डेथ की वजह से I am बहुत getting ज्यादा boring. परेशान थे और वो
Why? I don't know. I'm getting bored. बताते हैं कि उसका सीटी खतरे Yes, में है। I'm also getting bored. I want to eat non-veg. Yeah, and me too. गैंडल्फ और हॉबिट को बताते हैं कि सारोन ने एक But we don't have that much money to buy it. अब वो बहुत जल्दी You're कॉन्डोर right. सिटी पर अटैक करेगा। गैंडल्फ उसको बताते हैं कि सारोन ने अभी भी अपने एक वॉरियर को छुपा कर रखा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गैंडल्फ उसी साई की बात कर रहे थे जिसने फ्रोडो पर अटैक किया था। वहीं पर दूसरी तरफ हम गोलम और फ्रोडो और उसके दोस्त को देखते हैं जो मोरडोर के रास्ते तक पहुंच गए थे। अब वो एक ऐसे पहाड़ के पास पहुंच गए थे जहां पर बहुत ज्यादा सीढ़ियां थी और उन्हें उन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाना था। यहाँ पर ड्रैगन और सारोन की आर्मी भी थी लेकिन वो लोग इन लोगों को नहीं देख पाते। अब ये लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते So हैं। boring, अब जब भी right? वो रास्ते में सो जाते हैं तो I need to eat chicken fry. उठाकर नीचे फेंक देता है और उस रोटी के कुछ टुकड़ों को फ्रूडो के दोस्त सैम के ऊपर गिरा देता है। अब जब ये लोग देखते हैं कि उनके पास रोटी नहीं थी तो सैम बोलता है कि ये रोटी गोलम ने चुराई होगी। सैम गोलम को बहुत मारता है। दूसरी तरफ फ्रोडो की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि उस तलवार की वार की वजह से फ्रोडो बहुत ज्यादा वीक हो गया था। सैम फ्रोडो से कहता है कि उस रिंग की वजह से तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए रिंग मुझे दे दो। लेकिन फ्रोडो सैम को धक्का देता है और उसको कहता है कि पीछे हटो। वो सैम से कहता है कि तुम वापस चले जाओ। इस बात से सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है और गोलम अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ कॉन्डोर के किंग रोहान किंग की हेल्प लेना नहीं चाहते थे लेकिन गैंडल्फ फिर भी रोहान किंग को आग जलाकर इस बात का इशारा दे देते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है। अब ये सब लोग उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब जब एक रात के निकल रहे This होते हैं, is तो our उनके entrance. जाते हैं। वो बताते हैं कि आर्विन मर रही है क्योंकि अंधेरे की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जैसे जैसे अंधेरे की ताकत बढ़ेगी सितारों की ताकत कम हो जाएगी और आर्विन मर जाएगी। लेकिन एरागोन आर्विन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो एरागोन से कहते हैं कि तुम इस वार को कभी भी जीत नहीं सकते। Now you guys thinking why is also so bad, small and all. Now 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, two, three, four. के साथ उन पहाड़ी रास्तों पर चला जाता है जहाँ से कभी भी कोई वापस जिंदा नहीं आ पाया था। तभी एरागोन का एक साथी उससे पूछता है कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तभी एल्फिस को बताता है कि यहाँ के लोगों पर एक जादू है। Yeah, what are you doing? Yeah, second room. What room? Second, what room will be back? Will make. Anything. आजाद नहीं हो सकती। और किसी ने ये भी कहा था कि कॉन्डोर का किंग एक दिन मूर्तों के रास्ते पर से होकर गुजरेगा और अब ये तीनों मूर्तों के रास्ते पर से होकर गुजरते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी और इन खोपड़ियों को देखकर इनके घोड़े भी यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आती है और कहती है कि किसने यहाँ पर आने की इतनी हिम्मत की है। अब एरागोन वहाँ पर उस स्पिरिट से कहता है कि मैं कॉन्डोर का किंग हूँ, मेरे हुक्म को मानो। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खोपड़ियाँ गिरने लगती हैं और ये तीनों अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये देखते हैं कि सारों की आर्मी नदी के रास्ते से आगे बढ़ रही है। अब काफी इंसान भी सारों के साथ मिल गए थे और इन लोगों ने आसपास के गांव को भी जला दिया था। फिर पत्थर से एक सारा बाहर आता है। वो एरागोन से कहती है कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, हम लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे। दूसरी तरफ सारों की आर्मी कॉन्डोर सिटी पर अटैक कर देती है। वहाँ का किंग पूरी तरह से हार मान लेता है। वहाँ का किंग बिल्कुल पागल हो गया था। वो किंग ये समझ रहा था कि उसका दूसरा बेटा फेरेंडो भी मर गया है। अब वो लोग उसको जलाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर गैंडल्फ आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर सारोन की बहुत बड़ी आर्मी होती है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े हाथी और बहुत ही अजीब किस्म के ड्रैगन्स होते हैं। मुकाबला करना बिल्कुल आसान नहीं No. था। दूसरी तरफ Oh, how this this is the biggest and smallest. लेकिन वहाँ पर सारोन की आर्मी के इतने बड़े I'll meet you when I You make come. you make a series and still you are playing this is our series. I love the world. और वो उसके ड्रैगन का गला काट देती है। अब वो इस वॉरियर के ड्रेस में एक लड़की थी और वो छुपकर इस वॉर में आई थी। अब वो काला फैन कहता है कि मुझे कोई भी आदमी नहीं मार सकता और तभी उस किंग की भतीजी वो तलवार उसके मुंह पे मार देती है और कहती है कि मैं तो आदमी नहीं हूँ और
वो साया भी मर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारुन की जो आर्मी नदी के रास्ते से आ रही थी वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर ऑक्स की आर्मी तो पहले ही मौजूद थी। वो उन लोगों से कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। तभी वहाँ पोर्ट में से एरागॉन और उसके साथ डेडमैन की आर्मी पहुँचती है और वहाँ पर सारुन की आर्मी और डेडमैन की आर्मी के साथ बहुत बड़ी फाइट होती है और आखिरकार इस वॉर के बाद इंसानों की जीत हो जाती है। लेकिन इसी वॉर के दौरान रोहान किंगडम का किंग मर जाता है। अब रोहान किंगडम और कॉन्डोर किंगडम दोनों के राजा मर चुके थे। एरागॉन के पास डेडमैन आर्मी का किंग आता है और कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तो तुम हम लोगों को आजाद कर दोगे। Nathan, look at this. सबको आजाद कर देता है। डेडमैन की आर्मी Look, look. अंदर उड़ जाती है। दूसरी तरफ फ्रोडो गोलेम के साथ आगे जा रहा था। Yes, nice. नीचे उतरता है तो You have to sign police on the entrance, okay? I'll do like that. 1, 2, 3. फ्रोडो के पीछे दोबारा चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रोडो और गोलेम को देखते हैं जो अब एक गुफा में पहुंच गए थे। गोलेम फ्रोडो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अंदर जाना होगा और यही सिर्फ एक रास्ता है। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर आती है। वो स्पाइडर फ्रोडो को मारना चाहती थी क्योंकि गोलेम भी यही चाहता था कि वो So guys, finally I completed. Nathan, look at this. It's file. It's look like this. This what will you put this? That room, I don't know. You tell, okay? My that's a torture room. Yeah, torture room. Not torture room. In police station, I think there's no torture. But we can put. Okay. But I have something to do also. And this room is. I have something to do also. Where we put this room? I don't know. Yes, that fingerprint thing. Who touched that up? But I am not putting. इस तरह बुराई की हार और अच्छाई की जीत हो जाती है। अब लास्ट में ये दिखाया जाता है कि एरागॉन को किंग बना दिया जाता है और एरागॉन की आर्वेन से शादी हो जाती है। अब जब चारों हॉबिट्स के सामने किंग आता है तो वो किंग के सामने अपना सर झुकाते हैं। किंग उनसे कहता है कि तुम कभी भी किसी के सामने नहीं झुकोगे और जो किंग के साथ बड़े बड़े लोग थे वो सभी उन चारों हॉबिट के सामने झुक जाते हैं। अब 13 महीनों के बाद ये चारों हॉबिट्स दोबारा घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर सैम उस लड़की से शादी कर लेता है जिसको वो पसंद करता था। फ्रोडो 4 साल तक अपनी सिटी में ही रहता है और वहाँ पर वो एक किताब भी लिखता है और ये किताब सारी फ्रोडो के सफर पर थी। इसके बाद वो अपने अंकल बिल्बो बैगिन के साथ मिडिल अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। उसके अंकल अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे। बिल्बो बैगिन्स को एल्फ अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। वहाँ पर गैंडल्फ भी होते हैं। अब फ्रोडो भी उनके साथ जा रहा था और वो किताब जो फ्रोडो ने लिखी थी वो सैम को दे देता है और बोलता है कि अभी मेरा सफर बाकी है और वो भी उनके साथ चला जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। So guys, I am making a road for fly from Elytra. Presenting Magic Convertible PMR. क्योंकि हर फूड आइटम डिजर्व करे राइट टेम्परेचर। हाई इंस्पायर्ड लिविंग। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले पिकोलो एक बच्चे के साथ जमीन पर आया था और उसने जमीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर 7 लोगों ने मिलकर एक जादू जिसका नाम अफूबा है उसकी मदद से पिकोलो को कैद कर दिया। लेकिन उस बच्चे का नहीं बताया जाता कि वो कहाँ पर गया। इसके बाद हमें मूवी में बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के को उसके ग्रैंडफादर ट्रेन कर रहे हैं और उसे पावरफुल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि तुम अपने अंदर की पावर को यूज करो और इस पावर का नाम है की जो इंसान के अंदर की पावर होती है। आज इस लड़के की बर्थडे होती है और उसके ग्रैंडफादर उसे गिफ्ट देते हैं। ये ड्रैगन बॉल होती है। उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में टोटल 7
ड्रैगन बॉल्स हैं। तब वो लड़का पूछता है लेकिन मैं इस ड्रैगन बॉल का क्या करूं? तब वो कहती है कि ये अकेला तो किसी काम का नहीं, लेकिन अगर हम सातों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लें तो ड्रैगन आकर हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। इसके बाद ये लड़का कॉलेज चला जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, लेकिन ये लड़का उन्हें कुछ भी नहीं कहता। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक लड़की को भी लाइक करता है जो कि उसी कॉलेज में ही पढ़ती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो आजाद हो चुका है और वो भी इन्हीं 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा है। वो उन 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके साथ एक लड़की भी है जो कि उसके लिए काम करती है। इसके रास्ते में जो भी आता है ये उसे मार देता है और ड्रैगन बॉल्स जिसके पास भी है ये उन्हें भी मार रहा है। जैसा कि हमें एक औरत दिखाई जाती है उसकी बेटी के साथ, वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ड्रैगन बॉल उस लड़की को दे देती है जो पिकोलो के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी वो लड़की जो पिकोलो के लिए काम करती है वो उस बच्चे की माँ को मार डालती है। दूसरी तरफ हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसके ग्रैंडफादर ने उसे ड्रैगन बॉल दिया था। यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम गोकू होता है। आज उसका बर्थडे होता है, लेकिन जिस लड़की को वो पसंद करता है आज उसके घर पार्टी होती है, इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर को बताए बगैर उस पार्टी में चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने पावर्स को यूज करता है जिससे लड़की इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गोकू को ऐसा रियलाइज होता है कि जैसे Okay, उसके let me grandfather Nata, look at से this. हो रहा है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। It उसके is I can grandfather fly. जो उसका वेट कर रही थी कि गोकू आएगा और वो दोनों केक काटेंगे, लेकिन तभी वहाँ उसके घर पर भी पिकोलो आ जाता है ड्रैगन बॉल को लेने see? के लिए। वो उसके ग्रैंडफादर को मार डालता है और साथ ही उसका घर तोड़कर भी चला जाता है। और गोकू जब भागकर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को मार दिया है। उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले उसे कहते हैं कि पिकोलो वापस आ गया है और वो इस दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन इससे पहले कि वो 7 ड्रैगन बॉल्स उसको मिल जाए तुम्हें वो 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा ताकि तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचा लो। वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। साथ साथ उसके ग्रैंडफादर उसे मास्टर रोशी से मिलने का भी कहते हैं जो कि गोकू की हेल्प करेगा। अगले दिन गोकू के घर एक लड़की आकर उस पर अटैक कर देती है। उस लड़की का ड्रैगन बॉल भी पिकोलो ने चोरी कर लिया था। तब गोकू उससे कहता है कि मेरे पास जो ड्रैगन बॉल है वो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था और अब उनकी डेथ हो गई है क्योंकि रात को पिकोलो ने उन पर हमला किया था ड्रैगन बॉल लेने के लिए। ये कहकर वो उसे अपना ड्रैगन बॉल भी दिखाता है और वो उससे ये भी पूछता है तुमने मुझे ट्रेस कैसे किया? तब वो लड़की कहती है क्योंकि मेरे पास ड्रैगन बॉल को ट्रेस करने वाली एक मशीन है जिससे मैं ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन का पता लगवा सकती हूँ। तब ये लड़का यानी गोकू से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मुझे मास्टर रोशी से मिलना है क्योंकि उनके पास भी ड्रैगन बॉल है और वो मेरी मदद करेंगे। अब ये दोनों मिलकर मास्टर रोशी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फाइनली ये लोग उसे ट्रेस भी कर लेते हैं, जहाँ पर गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब ये भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वो उन दोनों यानी गोकू और उस लड़की को समझाते हैं कि अगर पिकोलो वापस आ गया है तो वो इस जमीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और लास्ट में हमारे पास कोई चांस भी नहीं होगा कि हम 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके ये विश मांगे कि जमीन को कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके। इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि सूरज ग्रहण होने से पहले हमें वो 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने होंगे क्योंकि जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा पिकोलो इस जमीन को डिस्ट्रॉय कर देगा अपने मैजिक से। उसी बच्चे के साथ जो कि 200 साल पहले उसके साथ जमीन पर उतरा था, वो बच्चा अब उसकी मदद करेगा जो कि अब बड़ा हो चुका है। अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। इसी के दौरान जब ये ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे होते हैं तब ये ट्रैप में फंस जाते हैं और ये ट्रैप एक लड़के ने बिछाया होता है। अब ये लोग उससे कहते हैं कि हमें आजाद कर दो और हमारी टीम के साथ शामिल हो जाओ। मास्टर रोशी उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाते हो और हमारी हेल्प करते हो यानी हमारे साथ मिलकर काम करते हो और हमारे लड़के ड्रैगन बॉल के बारे में No, I thought the video was paused.